Good morning, students. Today we are learn about metrological measurement. This topic belongs to your subject named as Engineering Measurement and Maintenance Factors. I am Amit Soni, belongs from Sagar Group of Institution. It is known as SAGE Group. We are offer here BTech, MTech, B Pharma, and Pharma, MCA, MBA diploma courses. So we can learn about metrological measurement. You have two different units in this topic. First is linear measurement and second is angular measurement. So as metrological measurement further divided in two subcategories. First is linear measurement and second is angular measurement. So dear student, you know very well about linear measurement. Linear measurement is a technique in which you can measure distance between two endpoints. It is known as length, height, etc. And angular measurement is radius or radial measurement of any object. So here we can learn about in engineering or science measurement. Measurement taken metric system. The metric system is a standard gain of measurement based on the power of 10. 10 means 2, such as millimeter, centimeter, meter, etc. So now we can check our slides. So the first slide shows that linear measurement, or it may be shows a 3 dummy snacks which can be measured by a scale which shows a larger, a medium, a smaller. So a larger snack has some end point and some starting point. It may be measured by the scale, steel rule, tape, or any other measuring instrument. In further slide. So student, the basic definition of linear measurement is measurement of perpendicular distance between 2 points or surfaces known as linear measurement. Means to say, the distance between 2 points, point A and point B, which is measured by a tape, a measuring tape, a steel tape, or your steel ruler or scale, which is found in your geometry box. It may apply to the measure of length, height, diameter, thickness, radius, etc. So, line measuring instrument consists of series of accurately spaced painted on masked line on them. स्टूडेंट, ये आपने देखा ही होगा कि आपके पास जो स्केल होता है उसमें ब्लैक पेंट से कुछ मार्क बने होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके अंदर सब कैटेगरीज छोटी बनी होती है. तो आपका स्केल थ्री बेसिक स्केल्स को शो करता है. फर्स्ट इज इंच, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो ये मेथड ही जो है ये इसी का मेजरमेंट इट इज नोन एज लीनियर मेजरमेंट. सो हमें जैसा कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्दर टॉपिक्स में कहीं पढ़ा होगा कि आपको जिसमें बताया गया है कि स्केल क्या होता है. सो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्केल का डिस्कशन नहीं करेंगे. तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस मैं यूज करूंगा उसमें रहेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं बोलूँगा कुछ डायरेक्ट मेजर करने के लिए और कुछ इनडायरेक्ट मेजर करने के लिए. तो ये अभी जो स्लाइड दिख रही है ये हमें शो करेगी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज इन्वॉल्व डायरेक्टली ऑन मेजरमेंट and such as indirect measuring instrument. So number 1, direct measuring instrument is the instrument which is taken part directly in a measuring system such as your steel rule, scale, tape, etc.
and second is indirect measuring instrument, which is used indirectly, such as infrared light instrument, optical instrument, which is used for measuring distance. If you are a civil engineering student, or you take practical on civil engineering, so you have learned about this. You have learned about dumpy level. So dumpy level or auto level, both are indirect measuring instruments. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी मेजरमेंट में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते, पर उनसे भी एक एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सकता है. सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो इनको भी जब मैं फर्दर क्लासिफाइड करता हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, तो दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन. अ ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि आपका जो स्केल है, रूलर है, स्टील रूलर है, टेप है, उसमें पेन से कुछ लाइंस बनी है. दैट इज नोन एज अ ग्रेजुएट. दैट इज नोन एज अ ग्रेजुएशन बिटवीन 2 पॉइंट. फर्स्ट, अगर आपके पास कोई स्केल है तो वहाँ पे 0 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ ग्रेजुएशंस बने हैं, कुछ पार्टीशंस हैं. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कुछ पार्टीशंस बने हो, ग्रेजुएशंस बने हो, दैट इज नोन एज ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट, सच एज स्टील रूल, टेप, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर, डायल गेज, एक्सेट्रा. और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसे कोई पार्टीशंस नहीं बने हैं, जिसको आप मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पर कोई पार्टीशंस नहीं बने हो सकते. तो ऐसा बेसिक एग्जांपल है कैलिपर्स, वायर गेज, स्क्रू गेज, पिच गेज, रेडियस गेज, थिकनेस गेज, एक्सेट्रा. So here are some pictures of graduated instrument. First of all, first figure shows that vernier calipers. Second shows that screw gauge. Third one shows that vernier height gauge, and fourth one shows that vernier depth gauge. So student, you can see very easily these are graduated instrument because of here you can see some partition between the main scale. If the graduation is not available, then it is known as non-graduated instrument, such as divider, outside caliper, inside caliper. स्टूडेंट, आपने ये डिवाइडर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा जिसमें 2 पिंस होते हैं. 2 पिंस क्या शो करते हैं कि कहीं पे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बार बार कॉपी करना है, तो आप क्या करते हो, उस डिस्टेंस को डिवाइडर में कॉपी करते हो तो मेंशन करते चलते हो. सो डिवाइडर में कोई डिस्टेंस मेजर नहीं है, कोई ग्रेजुएशन या कोई पार्टीशन शो नहीं हो रहा है, बट ये उस डिस्टेंस को मेजर कर सकता है. और आउटसाइड कैलिपर किसी भी स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर बॉडी का आउटर डिस्टेंस निकालने के लिए मिलेगा. निकालने से इन द सेंस मेरा है कि ये आउटर बॉडी पे हम इसको हैंग कर देंगे, आउटर बॉडी पे इसको फिक्स कर देंगे और आप जाके इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हो. और इनसाइड कैलिपर जो है, ये हमेशा मैं इनर डायमीटर, इनर डायमेंशन फाइंड करने के लिए यूज करता हूँ. एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर का इनर डायमीटर आपको मेजर करना, और आप इसको किसी स्केल के मीडियम से नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, इनर कैलिपर इंसर्ट करेंगे, ये रैचेट स्क्रू को सेट करेंगे और इसको बाहर निकाल के आप उसको डायमेंशंस ले सकते हैं. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 जो है, जिसको मैं बोलूँगा वायर गेज, और आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे से स्लॉट्स बने हुए जिसमें कोई डायमेंशंस मेजर है. सो ये वायर गेज जो है, किसी भी एक सिलेंड्रिकल वायर का डायमीटर फाइंड करने के लिए दिया गया है. आपको बस क्या करना होगा कि वायर को इन स्लॉट में इंसर्ट करना है और डायमेंशन फाइंड करना है. यू गेट योर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, योर डायमेंशन ऑफ द योर वायर. और लास्ट वन फिगर इज शोज दैट पिच गेज. इसको हमने 9th क्लास और 11th क्लास में पढ़ा था, पिच गेज, और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे. इसका छोटा सा प्रैक्टिकल भी हम लोग क्लास में देख रहे हैं.
पिच गेज आपको क्या करना होता है, कोई स्क्रू है, स्क्रू पर थ्रेड बने हुए, तो थ्रेड का मेजरमेंट करना कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो फ्लेयर, इसके फ्लैट्स बने हुए जो है, आपको क्या करना है, ये टूथ को आपके पिच पे इंसर्ट करना है, टूथ को पिच पर इंसर्ट करना है और डायमेंशंस इस पे जो मार्क है उसको देख लेना है, तो आपको आपका पिच गेज मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक लर्निंग अबाउट लीनियर मेजरमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर्स, हाउ टू यूज माइक्रोमीटर, हाउ टू यूज वर्नियर हाइट गेज। Okay, thank you very much, students.